Good morning, student. Today again we will talk about lesson number first, personal hygiene of class 7th. Yes, in this video we will try to discuss briefly on personal hygiene. It is very important for everyone to know about the personal hygiene. Yes, okay, listen to me. पर्सनल हाइजीन यानी कि बच्चों आज हम पुनः इस वीडियो में जो क्लास 7 के लिए बनाई गई है लेसन सेकंड पर्सनल हाइजीन। यस, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पर्सनल हाइजीन इज द नेम given to that branch of science which tells us how to keep ourselves healthy and free from disease. Yes, we should follow the rules of hygiene in order to lead a healthy and happy life. Okay, my dear. Personal hygiene to maintain or keep clean of our body, yes, individually and free from disease is called the personal hygiene. It is clear for everyone. And after that, cleanliness, yes, I think it is clear. यानी कि keep clean of our body individually and make our body free from disease or germs is called the personal hygiene. Yes, and personal hygiene is a branch of science. It is a branch of science in which we learn that how can we keep our body healthy and how can we make our body free from diseases. Yes, and there are so many rules of personal hygiene to lead a healthy or happy life. There are so many rules. Suppose that we have to get up early in the morning, we should go take bath daily, we should take brush, yes, we should give or apply the massage, etc. Yes, it is called the personal hygiene. यानी कि बच्चों पर्सनल हाइजीन क्या होती है? वास्तव में अपने शरीर को व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा रखना, अपनी बॉडी की साफ सफाई रखना और साथ साथ क्या करना, उसको बीमारियों से दूर रखना ही क्या कहलाती है? पर्सनल हाइजीन कहलाती है। पर्सनल हाइजीन वास्तव में एक साइंस की ब्रांच है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, हम कैसे अपनी बॉडी को बीमारी से बचा सकते हैं, कीटाणुओं से, जर्म से बचा सकते हैं। और इन सब को अप्लाई करने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। किसके? पर्सनल हाइजीन के। यस, जैसे प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, सुबह सुबह हमें ब्रश करना चाहिए, शाम को ब्रश करना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, बॉडी पर तेल की मसाज करनी चाहिए या अन्य बॉडी ऑयल की मसाज करनी चाहिए, बालों में ठीक प्रकार से मसाज करानी चाहिए। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूल्स हैं अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। And describe any 5 rules of personal hygiene whose complaint is necessary for us. यानी कि पर्सनल हाइजीन के 5 रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल रूल के वास्तव में 5 रूल कौन कौन से होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो द पर्सनल हाइजीन रूल्स। नंबर 1,
we should go for walk, take exercise, work according to age and need. It is our first rule of our personal hygiene. Every day we should go for walk, take exercise, morning and evening exercise according our age, according our need, our capacity. प्रतिदिन हमें घूमने जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें एक्सरसाइज और वर्क करना चाहिए। इट इज अवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज वी शुड टेक ब्रीथ थ्रू नोज। एवरी टाइम वी शुड try to take breathe through the nose. Yes, because when we take breath through the nose, in that condition many germs, yes, and only stuck in the hairs of our small nose hair। यानी कि जब नाक से सांस लेते तो क्या होता है, जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया सांस के साथ जाते हैं उन सबको अपनी नोज में ही रोक लेते हैं, बालों पर चिपका लेते हैं। यस, नेक्स्ट इज वी शुड हैव टू complete knowledge of the internal or external organs of our body. Yes, generally it is our moral duty, it is our moral responsibility that we should know, we should have general knowledge, yes, about the internal organs and external organs of our body. Suddenly we feel ill, yes, we have any complaint, any organs of our body, we have pain and any problem. In that condition, if we have knowledge about the internal or external organs, in that condition we can apply first aid. Yes, we can apply treatment, that will be called first aid। यानी कि हमें अपने बॉडी की जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जनरल रूप से जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं अचानक से यदि आप कि किसी बॉडी के हिस्से में, पार्ट में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम पैदा होती है, कोई पेन होता है या अन्य कोई समस्या पैदा होती है, तो आपको नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर वो ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट एड भी कह सकते हैं। इट इज़ क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज वी शुड टेक नीट एंड बैलेंस डाइट। इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छा और निरोग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ और बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए। वी शुड गो टू बेड ऑन टाइम। यस, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अकॉर्डिंग दिस। हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी बेड पर अपना सोने के लिए जाना चाहिए। ये सभी का प्रोसेस होना चाहिए। इट इज क्लियर। तो दीज आर अवर 5 pillars of personal hygiene which have very important role in our life. I think all are clear. Okay, next is how should be cleanliness of our hair be maintained। यानी कि हम अपनी बालों को किस प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। वी विल नो अबाउट इट। तो लिसन टू मी। आफ्टर वॉशिंग द हेयर प्रॉपरली with soap, oat, amla, curd, lemon, yolk of egg, or with a Drewel shampoo, apply oil on them and then comb. Yes, if we want to maintain the cleanliness of our hair in that condition, every day properly we have to wash our hair with shampoo,
with amla, yes, with lemon, yolk of egg, and any dandruff shampoo. What we should be avoid use शैम्पू, सॉरी सॉप, हमें साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड समटाइम वी शुड बी अप्लाइड ऑयल एंड आफ्टर देन वी शुड गो फॉर कॉम. समटाइम यानी कि आपने देखा होगा कि यदि हम अपने बालों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना है, प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बालों को प्रतिदिन अच्छे तरीके से धोएं. चाहे साबुन का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए बालों पर. हमें शैम्पू का यूज़ करना चाहिए, और शैम्पू भी कि आपके बालों के अकॉर्डिंग कौन सा शैम्पू अच्छा है. आंवला पाउडर या आंवला का यूज़, आंवले का रस का यूज़, कभी कभी दही और लेमन का यूज़ करना चाहिए बालों में. दही और लेमन को मिक्स करके बालों में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, डैंड्रफ नहीं होता है, बाल सिल्की बनते हैं. कर्ड लेमन और योक ऑफ एग यानी कि अंडे की जो पीली पीली अंदर जर्दी हो जिसको बोलते हैं, उन सबका एक काढ़ा बना करके, यस, यानी कि आंवला, दही और अंडे का योक यानी पीली जर्दी को मिला करके उसको घोल करके हम अपने बालों में लगा सकते हैं. और कभी कभी शैम्पू का यूज़ करना चाहिए. उसके बाद अपने बाल धोने के बाद प्रतिदिन हमें तेल का यूज़ करना चाहिए और उसके बाद कंघा करना चाहिए. इससे क्या होता है, हमारे बाल सुरक्षित रहते हैं, उनकी साफ सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है. समटाइम हेड शुड बी मसाज्ड विद मस्टर्ड ऑयल. समटाइम इट इज मस्ट फॉर एवरीवन. वी हैव टू टेक प्योर मस्टर्ड ऑयल and should be applied in our head to keep the hair soft, black and bright. अगर हम अपने बालों को काला घना लंबा रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें तेल से अपने बालों पर मसाज करनी चाहिए. उससे हमारे बाल मुलायम, काले और चमकदार बनते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ शुड द क्लीननेस ऑफ अवर आइज बी डन. अब आइज हमारी बहुत सेंसिटिव जोन में आती है. अगर आंख नहीं तो कुछ भी नहीं, सारा संसार अंधकार में हो जाता है. तो हमें आंखों की साफ सफाई करनी चाहिए. हाउ कैन बी, लिसन टू मी. फॉर द क्लीननेस ऑफ अवर आई वी शुड वॉश द आई thoroughly with cold water many times every day. Yes, first of all, when we get up early in the morning, after brushing and taking bath, yeah, during the bath we should apply cold water, or we should wash our eyes with cold water. Like the same process should be applied many times in a day, every day. यस, यानी कि हमें अपनी आंखों को साफ रखना है, उनको सुरक्षित रखना है, उसकी साफ सफाई रखनी है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिन में कई बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से धोना चाहिए. ये आंखों में जो डस्ट होती है, डस्ट चली आती है, अन्य जर्म्स होते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं और आंखें की रोशनी बढ़ती है. यस, आंखों में चश्मा नहीं लगता है जल्दी से. एंड आई शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द dazzling लाइट. इट इज मस्ट फॉर एवरीवन टू नो अबाउट इट. वी शुड अवॉइड शी डायरेक्टली और dazzling लाइट, यानी जो चमकदार लाइट होती है जो आंखों में एकदम सी पड़ती है, जिससे चकाचौंध आंखों में आ जाती है. इस प्रकार की लाइटों को सीधे देखने से हमें बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए. यानी कि ऐसी बहुत सी डैजलिंग लाइट होती है जिसकी रोशनी बहुत तेज होती है, उनसे हमारी आंखें चौंधिया जाती है, कुछ दिखता नहीं है उसको देखने के बाद. तो ऐसी इस प्रकार की लाइट को सीधे देखने से हमें बचना चाहिए. गूगल पहन करके देखना चाहिए, साइड से देखना चाहिए. आई थिंक इट इज क्लियर. एंड आईज शुड ऑलवेज बी क्लीन्ड विद अ नीट हैंडकरचीफ.
it is our responsibility and moral duty that we have to keep a handkerchief, a neat and clean handkerchief in our pocket, and always we should apply our handkerchief on our eyes, and we should be avoid to touch our eyes with our fingers and hands। यानी कि हमें अपनी आंखों को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रुमाल हमारी अपने जेब में रखना चाहिए, और जब भी आंखों में खा जाए, कुछ प्रकार की अन्य प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपनी आंखों को अपने हैंडकरचिप से छूना चाहिए, हाथों से उंगलियों से नहीं छूना चाहिए। यस, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी फॉलोड टू लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यानी कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है, हेल्दी जीवन जीना है, खुशी का जीवन जीना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वो गुण रहस्य है जिसके माध्यम से हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। लिसन टू मी, वी शुड बी फॉलोड टू पर्सनल हाइजीन रूल्स to lead a healthy and happy life. It is must to know everyone. Why? If we maintain our personal hygiene and we follow rules and regulation of personal hygiene, in that condition we can make our body healthy, and when we have healthy body, in that condition our life will be healthy, will be happy. That is called the healthy and happy life. We can lead it with the help of personal hygiene, to obey or to follow the personal hygiene rules। यानी कि हम अच्छा स्वस्थ अब जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो हमें अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए, खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पर्सनल हाइजीन है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा जीवन हेल्दी होगा और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इज हाउ शुड स्किन बी क्लीन। हम अपनी जो स्किन है, बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है हमारी स्किन जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। यस, लिसन टू मी, इन ऑर्डर टू कीप अवर स्किन वी शुड बी वॉश डेली विद फ्रेश वाटर आफ्टर ऑन रबिंग अ केक मेड ऑफ ग्राम पाउडर and powder of peels of orange. After bathing, the body should be scrubbed with a neat towel, and then neat and clean clothes should be worn. Yes, if we want to make our skin clean, in that condition we have to take bath daily with fresh water, and we should be apply cake of beans and powder of orange, peel of orange. We should apply body massage shampoo, body shampoo. Yes, in that condition we make the cleanness of our skin. After bathing we should scrub our body, our skin with a neat and clean towel, and we should wear द नीट एंड क्लीन क्लॉथ ऑल्सो। अगर हम अपनी स्किन को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए, और जिस पानी में हम स्नान करते हैं वो वाटर साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, रबिंग अ केक मेड ऑफ ग्राम, अर्थात चना बीन्स पाउडर बना लेना चाहिए। चना लेकर के उसको कूट लीजिए, कूटने के बाद उसको ग्राइंडर कर लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उस चने से हमें पाउडर से हमें अपनी बॉडी पर उसको अप्लाई करना, अपनी बॉडी पर लगाना चाहिए, और फिर उसको रगड़ना चाहिए अपनी बॉडी पर। कभी कभी जो संतरे के छिलके होते हैं उनका पाउडर बना करके
हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी पे स्क्रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी साफ सुथरी बनती है। जितने जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं हमारी स्किन पर, वो सब हट जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरी टॉवल का यूज़ करना चाहिए और उससे अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को साफ करना चाहिए। इसके बाद हमें लूज और क्लीन क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती है। आफ्टर दैट, व्हाट शुड बी द क्लीननेस ऑफ अवर टीथ बी मेंटेन। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ऑन गेटिंग अप in the morning and going to bed at night, teeth should be cleaned well daily with the help of a twig or toothbrush. Sometimes mouth should be washed with luic containing salt. Yes, we have to apply. अगर हम अपने दांतों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, उसकी साफ सफाई रखने से क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन सुबह ब्रश करना चाहिए और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। अगर ब्रश नहीं है तो कुछ लोग गांव में किसका यूज़ कर सकते हैं, नीम की टहना वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। यस, कभी कभी हमें टहनी का यूज़ करना चाहिए, उंगली से मसाज करनी चाहिए टूथ पाउडर से, कभी कभी टूथ ब्रश करना चाहिए। अच्छा है कि शाम को आप टूथ ब्रश करें और सुबह मॉर्निंग में आप उंगली से आप उसको टूथ ब्रश करें, यानी कि मसाज दें अपने दांतों को। कभी कभी हो सकता है कि आप गुनगुना उसमें पानी डाल, गुनगुने पानी में नमक डाल करके अपने दांतों पर अप्लाई करें, उसको कुल्ला करें। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ शुड बी प्रोटेक्शन, हाउ शुड द प्रोटेक्शन ऑफ ईयर्स बी मेंटेन, कि हम अपने कानों को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। लिसन टू मी, ears should not be cleaned with a pin or any other pointed object. हमें कभी भी अपने कानों को क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी पिन से या नुकीली चीज से अपने कानों को साफ नहीं करना चाहिए। If wax is impacted in the ears, then warp some cotton well around across the thick strub and after dipping it into out of hydrogen peroxide, turn it in the ear to clean it. और कभी कभी आपके कानों में यदि मैल हो जाता है, मैल कान से खा जाती है, कानों में खा जाती है, तो क्या करना चाहिए, आपको किसी जैसे मैच स्टिक हो गई या बड हो गई, बड का यूज़ आपको यूज़ कम करना चाहिए। जो ईयरबड होती है उसका यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हार्ड होती है, कानों में एकदम लगती है, तो उससे कभी कभी कानों को हार्म हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए मैच स्टिक का यूज़ करें, उस पर कॉटन लपेट करके उसको हाइड्रोजन में डिबो करके उसके बाद आप अपने कानों में से किसको, वैक्स को, यानी कि मैल को निकाल सकते हैं। इट पब्स कम्स आउट ऑफ द ईयर, पुट 2 drops ऑफ boric acid solution, 1 gram boric acid and 2 gram glycerin in them at bed time. जब आप शाम को सोने जाते हैं तो क्या करना चाहिए, 1 ग्राम बोरिक एसिड और 2 ग्राम ग्लिसरीन का यूज़ करके आप दोनों को मिक्स करके या बारी बारी से अपने कानों में डालना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी कानों की साफ सफाई रहती है। आई थिंक इट इज क्लियर बच्चों। तो हमने इसमें जाना है आज की वीडियो में कि हम किस प्रकार से हम अपनी बॉडी के, दांतों की, बालों की, स्किन की साफ सफाई कर सकते हैं। यस, आई थिंक ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। ओके माय डियर, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।